सही राम। सर कल जो पेरेंट्स कल सर पेरेंट्स को आना है ना वो चेक करने के लिए, साइन करने के लिए उस पे काय काय पे सर आपका, फॉर्म पे। वो तो अभी आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं पेरेंट्स उसके लिए, तो जिनके पेरेंट्स तब जा आके कर चुके हैं कुछ तो। हाँ जी। हाँ सर, नहीं सर सर वो क्योंकि कुछ बच्चों का कल नाम था, आज वाली लिस्ट में हमारा नाम है, तो सर दोनों पेरेंट्स आएंगे कि एक ही पेरेंट्स आ सकते हैं? एक ही जना वो आ नहीं सकता है? पता, मुझे नहीं पता बेटा, आपस में पूछना फोन करके हो, क्योंकि आई डोंट नो अबाउट द प्रोसेस ना। अच्छा। ऑफिशियली पता नहीं, ऑथेंटिक आई डोंट नो व्हाट इज इन्फॉर्मेशन ना, ऑफिस से पता करना पड़ेगा तो मुझे, क्योंकि मैंने पता ही नहीं किया, मेरा काम नहीं है, तो मुझे पता नहीं उसका क्या है ना, कौन करता है। यस सर। ठीक है बेटा। तो ओपन योर वीडियो अनुराग एंड नियति। अनुराग ओपन योर वीडियो, नियति ओपन योर वीडियो, एंड कौन नियति होगा, शायद कौन है। यस, so let us start with chanting of Omkar 3 times. Serum. So now we are discussing stopping. So we have already discussed this process of stopping. Anjali Misra, open your video. Anjali, open your video. Sarath, also open your video. Anjali and Sarath. Okay. So we have discussed process of staffing. Then we discuss recruitment, sources of recruitment, internal sources and external sources. So next step, next topic is the selection. Selection is the part of staffing process, and selection is also a separate process. So we have to discuss today selection. So what is the meaning of selection? Selection is the process of selecting or finding out or searching the best candidate out of those who have applied for the job. It's a process of searching or finding out the best candidate out of those who have applied for the job. So in recruitment, what we do? At the time of recruitment, as I said, recruitment, objective of recruitment is the making a pool of candidates. Objective of recruitment is making a pool of candidates. So Nandini, Shrestha, Siddharth, open your videos. Okay. Nandini, Shrestha and Siddharth, keep your videos open. Shrestha and Siddharth also have to open the videos. Okay. So the purpose of recruitment was to create a pool of candidates. So we have to select the best one out of these candidates. So selection is the process of selecting or searching or finding out the best person or best candidate out of those who have applied for the job. So we can select from to whom we can select. We can select to that person only who have applied for the job. If someone may be best in the world, but if he had not applied in the organization, how can we select that person? So selection is possible only out of those candidates who have applied for the job. So now we follow a process so we can reach to the person who is the best out of those candidates who have applied for the job. So that's why that is selection is called as the process of selecting or finding out or searching the best candidate out of those who have applied for the job. And I have already discussed with you in the beginning in the process that recruitment is a positive process where we keep on accepting. We want more and more applications, so we can have a larger pool of candidates and we can select the best one. Because larger the number of candidates, better the choice.
But here at the stage of selection, our approach is just opposite. That is negative approach. So selection is called a negative process, where at every stage we keep on eliminating, so we can reach to the best one. We can reach to the right person. So there are certain steps which are to be followed in the process of selection. So now let me share the screen. Okay. We are using whiteboard, create new, and we need its text, create new, okay, and text is needed, okay. Okay, so we are discussing about select process or process of selection. So what is the purpose? Purpose of this process is to search or to find out the best person out of those who have applied for the job in the organization. So first step in the process of selection is preliminary screening. Preliminary screening. Okay, so this is the first step in the process of selection. So remember, process of selection begins after recruitment. After recruitment means then we have already received the applications, then we start the selection process. So without having the applications, we cannot go for selection process. So before this, we have already completed the recruitment process where we have given the advertisement and we have received the applications from the candidates. So this preliminary screening is the first step in the process of selection to eliminate unqualified or unfit candidates. The main purpose of this preliminary screening is to eliminate unqualified or unfit candidates. What happens sometimes? Sometimes we give the advertisement, and in advertisement we write minimum educational qualification. What we write? Minimum educational qualification. This we write minimum educational qualification. Or sometimes we write experience. Person, those who are applying for the post, they should have this experience, or this is the minimum qualification. But what happens sometimes, और some physical standards भी physical parameters भी हो सकते हैं. अगर कोई पुलिस की पोस्ट है, फोर्स की पोस्ट है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड हो सकते हैं, है ना. जैसे हाइट कितना होना चाहिए उसका, चेस्ट कितना होना चाहिए, that can be given. Okay, so this is the requirement, minimum requirement that we mention in the advertisement. But sometimes some candidates who do not have this minimum qualification or experience or physical standard, they also send their application. Are you understanding? Sairam? Yes, sir. Sairam? Yes, sir. Yes, sir. These people do not have required qualification, or they do not have experience, or they do not match the physical standards, but they apply. But why to waste our efforts on processing of these applications, because ultimately they will be rejected. उनको लास्ट में जाकर रिजेक्ट किया तो उससे बहुत सारा हमारा एफर्ट वेस्ट जाएंगे. So at the initial stage we match all the qualifications of the people with the required qualification. जो हमने एडवर्टाइजमेंट में दिया है उससे हम मैच करके देखते हैं हर एक कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन की, उसमें अपने वो सारी चीजें पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है. So if the some of the candidates are found do not fulfill this minimum requirement, their applications are being rejected, they are not further processed. Clear है? तो उनके हम आगे प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, इसी स्टेज पे उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है. इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है,
या जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, या फिजिकल स्टैंडर्ड हमने मांगा तो वो नहीं है, या हमने कुछ बोला कि आपको इतना एग्जाम फीस डिपॉजिट करना तो फी डिपॉजिट नहीं की, तो दिस कैंडिडेट्स विल बी इनिशियली रिजेक्टेड। सही राम। अब कई कंपनियां तो क्या करती हैं, दे कॉल द कैंडिडेट्स एंड फर्स्ट दे चेक ऑल दी डिटेल्स देन ओनली दे इशू द एप्लीकेशन। कुछ कंपनियां पहले ही डिटेल चेक करती हैं, उसके बाद एप्लीकेशन देती है कैंडिडेट को। वो थोड़ा डिफिकल्ट काम है, कैंडिडेट आएगा वहां पर एप्लीकेशन लेगा आपसे। सो नॉर्मली क्या होता है, वी सप्लाई द वी इशू द एप्लीकेशन मींस एडवर्टाइजमेंट में देते हैं, और आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन वी चेक whether the candidates fulfill the minimum qualification or not, and if some people are found which are not fulfilling the minimum standard or minimum qualification, their applications are being rejected, they are not further processed. ठीक है। After this preliminary screening, the second very important step is the selection tests. Selection tests. Now we conduct different types of tests to judge who is the best candidate, है ना। So out of those who applied for the jobs at the first stage, some people are being eliminated, है ना। यहाँ पर कुछ लोग eliminate हो जाएंगे। कौन से eliminate हो जाएंगे? Those who do not possess minimum qualification और experience नहीं, उनको हम बाहर कर देंगे। Now we will call the remaining candidates for the different types of tests depending on the nature of the job, है ना, और requirement of the job। उसके हिसाब से हम different type के test करते हैं। These tests judge the different angles of the personality of the candidate. We may need to judge the intelligence level, so we can judge the IQ test of the candidate, intelligence test, or different types of tests may be conducted to judge the suitability of the candidate for the job, and who is the most suitable candidate, that can be judged on the basis of different types of selection test. All of you must be aware, जितनी भी पोस्ट के लिए कुछ ना कुछ तो टेस्ट होते हैं, सबको पता है ना। रिटन टेस्ट होता है, किसी में MCQ टेस्ट होता है, कहीं डिस्क्रिप्टिव होता है, but some test is being conducted. Sairam? Yes, sir. Yes, sir. अब आपको क्या करना है, जब ये प्रोसेस अगर पूछेगा आपसे राइट द सिलेक्शन प्रोसेस, तो टेस्ट के केवल नाम लिखने हैं ना। टू चूज द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ द एप्लीकेंट्स वी कंडक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, और उनके नाम लिखते हैं। पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगर अकेला प्रोसेस पूछा तो। इनको एक्सप्लेन कब करेंगे, जब अलग से पूछा कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट व्हिच आर कंडक्टेड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, अगर इनके ऊपर क्वेश्चन आता है अलग से तो एक्सप्लेन करना है। अगर सिंपल प्रोसेस पूछा तो उसका रेफरेंस वर्ड देना है कि वी कंडक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट सो वी कैन सर्च हाउ वी कैन फाइंड आउट द बेस्ट कैंडिडेट, एंड दीस टेस्ट आर, उनका नाम लिख देंगे। ठीक है, तो कौन कौन से टेस्ट हम लोग करते हैं? सबसे जो कॉमन टेस्ट है वो है नंबर ए पर है इंटेलिजेंस टेस्ट। आप सबने सुना होगा, तो हर जगह होता ही है लगभग, है ना। इंटेलिजेंस टेस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? IQ टेस्ट, है ना। IQ का फुल फॉर्म बताइए कोई? सिद्धार्थ बताओ, सिद्धार्थ, फुल फॉर्म ऑफ IQ। Intelligent question. हाँ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, है ना। So this test is conducted to judge the intelligence level of the candidate. Intelligence level means the ability of the person to क्या बोलता है इसको, एनालिटिकल थिंकिंग जो होती है उसके पास, है ना, उसको जज करता है। So how intelligent a person is, that is being judged by the intelligence test. Intelligence quotient, IQ का मतलब था intelligence quotient. So whether the candidate is able to analyze the data, he can take the decision or not, he can क्या बोलते हैं उसके epistemic understanding है कि नहीं, all these we judge by intelligence test, ना, IQ test, intelligence quotient test. ठीक है, so this is the most important test which judge the intelligence level of the candidate. So different types of test series are developed, so we judge the learning ability of the candidate, or ability of the candidate to take a decision, ability of the candidate to analyze the data and draw some useful conclusions or results. That all depends on the intelligence of the candidate. ठीक है, दूसरा हम लेते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट ना, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, है ना, सुना होगा ना। एटीट्यूड होता है एक तो, और एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट।
ठीक है. This test is very important and it is conducted to judge the candidate's ability to learn new skills or new things. Whether the candidate has the aptitude to learn new things or new skills or not. That is judged by the aptitude test. So what type of aptitude a person possesses? It measures individual's potential for learning new skills, capacity to develop in future. So whether the candidate will be able to develop in future himself or not. Will he be able to go for training or development programs, or will he be able to learn new skills, new things or not? That depends on the aptitude. ठीक है. तीसरा होता है पर्सनालिटी टेस्ट. Personality test provides clues of a person's emotions, reactions, maturity, and value system. This is judged by personality test. Emotions, है ना? Then reactions in a specific situation. किसी specific situation का reaction क्या होता है? Maturity level, वो मैच्योरिटी शो कर पाता है कि नहीं कर पाता है. Is he matured enough or not? बचपन वाली बच्चा नहीं करता है, वही काम करता है जैसे जो लोग लर्नेड नहीं वो करते हैं. एंड वैल्यू सिस्टम, उसका वैल्यू सिस्टम क्या है? दैट इज बीइंग डिस्प्लेड बाय द पर्सनालिटी टेस्ट. दीज ऑल थिंग्स आर बीइंग जज्ड बाय द पर्सनालिटी टेस्ट. व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी है? उसमें एक और होता है, इसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट और एक होता है एक्सट्रोवर्ट. सुना है क्या आपने? इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी. इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो अपने अंदर ही अंदर खोए रहते हैं, बहुत कम चीजें बाहर में आती हैं उनकी, है ना. और एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो बहुत खुले होते हैं, वो हर चीज शेयर करते हैं लोगों से. दैट वी हैव टू जज बाय पर्सनालिटी टेस्ट, ना. व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी दैट पर्सन हैज, है ना. तो पर्सनालिटी which one is good? हाँ जी. फिर हम Sir, the person should be extrovert or introvert? कुछ जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपको किस जॉब के लिए कैसा पर्सन चाहिए. हर आदमी अच्छा होता है ना, इंट्रोवर्ट भी अच्छा होता है, एक्सट्रोवर्ट भी अच्छा होता है. डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जॉब. कई पोजीशन पे एक्सट्रोवर्ट ही अच्छा हुआ, इंट्रोवर्ट ही. अब जैसे लॉयर है, मान लो लॉयर कुछ बोल ही नहीं पाता, इंट्रोवर्ट होगा तो कैसे काम करेगा? वो तो एक्सपर्ट एकदम बुलंद बोलेगा बढ़िया से, तो क्या होगा? ज्यादा सूटेबल रहेगा वहां के लिए, ना. आपको जज है, जज को कौन सा होना चाहिए? जज शुड बी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट. जज की पोस्ट पे कौन सा बंदा अच्छा होगा? इंट्रोवर्ट. Sir, introvert. है ना. जज के लिए इंट्रोवर्ट अच्छा है, क्योंकि उसको तो कम से कम बोलना है. जितना ज्यादा बोलेगा उतनी परेशानी खड़ी करेगा खुद के लिए और दूसरों के लिए. तो दैट डिपेंड्स ऑन द. दोनों अच्छे हैं, इंट्रोवर्ट भी अच्छा होता है, एक्सट्रोवर्ट भी अच्छा होता है. अब जरूरत है कहाँ पर किसकी जरूरत है वो आपको देखना है कि आपका जो जॉब पोजीशन उसमें कौन सा नेचर का बंदा अच्छा रहेगा, इंट्रोवर्ट वाला अच्छा रहेगा कि एक्सट्रोवर्ट. दैट्स व्हाई वी आर कंडक्टिंग दिस टेस्ट, है ना. उसके लिए तो हमें टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं. फिर एक होता है ट्रेड टेस्ट. A trade test is basically the test which is conducted to judge the capacity of a person to operate machines, equipments. वो चला सकता है कि नहीं चला सकता, उसके लिए करते हैं ट्रेड टेस्ट. जैसे टाइपराइटर, टाइपिस्ट की पोस्ट है तो टाइपिंग करना आता है कि नहीं आता उसको. मैकेनिस्ट की पोस्ट है तो मशीन ऑपरेट करना आता है कि नहीं आता ठीक से. So for that we conduct the trade test, है ना, to judge the capacity of a person to operate the machines and equipment, to work with the specific instruments. That is judged by trade test. तो उससे उसका मालूम चलता है कि वो अपने काम में नॉलेज है, प्रोफिशिएंट है कि नहीं है, और जिस काम के लिए इसको रखा जा रहा है उस काम को वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. तो इट इज पर्टिकुलर स्किल बेस्ड होता है. जिस स्किल के लिए, जिस काम के लिए इसको रखा है उसकी स्किल है कि नहीं, उसको इज ही परफेक्ट इन दैट, है ना. तो इसको आजकल टीचिंग में भी बोल सकते हैं. कई स्कूल्स में क्या करते हैं, वो किसी टीचर को सिलेक्ट करने से पहले क्लास में भेज देते हैं. वहाँ पर बच्चे होते हैं तो उन क्लास को पढ़ाने को बोलते हैं उनको, है ना. द टीचर इज आस्क्ड टू टीच द क्लास. वो ट्रेड टेस्ट है कि टीचर इज कैपेबल ऑफ टीचिंग द क्लास और नॉट. वो उसी का पार्ट है ट्रेड टेस्ट का. सो दिस इज चेकिंग द प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल ऑफ द कैंडिडेट. कि वो थ्योरी तो ठीक है लेकिन प्रैक्टिकली उसको कितना अच्छा इफेक्टिव है, दैट कैन बी टेस्टेड बाय ट्रेड टेस्ट. ठीक है. तो मार्कशीट पे क्या स्कोर है वो तो अलग बात है, लेकिन रियल लाइफ में कितना इफेक्टिव है दैट इज जज्ड बाय द ट्रेड टेस्ट. ठीक है. और एक और होता है इंटरेस्ट टेस्ट. हॉबीज क्या है, किस फील्ड में उसको ज्यादा इंटरेस्ट है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट टेस्ट. इससे क्या होता है कि जब हमको उसका इंटरेस्ट पता होगा तो उसके इंटरेस्ट का ही काम हम उसको दे सकते हैं, और वही काम जब देंगे तो
वो ज्यादा अच्छे से करेगा। So we need to find out the interest areas of the people. For that we conduct the interest test. ठीक है, so these tests may be conducted by different variations or modules. They can be developed by the organization, but purpose is to find out different angles of the personality of the candidate, है ना। आजकल एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है, वो इसमें दिया नहीं है, तो बताया आपको EQ। आजकल दो टेस्ट और आगे बड़े इंपॉर्टेंट है, एक होता है EQ ना, और एक होता है SQ। These are very important nowadays। SQ तो बताएगा फुल फॉर्म इसका। EQ का फुल फॉर्म क्या है? आज के जमाने में Emotional quotient। कोरोना के टाइम में तो बड़ी, हाँ इसकी बड़ी जरूरत है आजकल। इमोशनल कोसेंट है ना, इमोशनल बैलेंस बोलता हूं मैं इसको बेसिकली, है ना। इमोशनल कोसेंट, इमोशनल कोसेंट इज जज्ड बाय EQ ना, इमोशनल कोसेंट। इमोशनल कोसेंट मतलब वेदर द पर्सन इज स्टेबल इन द इमोशंस, बैलेंस है, इमोशनली बैलेंस पर्सन है कि नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनली बैलेंस और अनबैलेंस कैसे मालूम चलता है कि जो थोड़ी सी खुशी मिली तो खुशी में पागल हो गया, थोड़ा सा गम हुआ तो गम में पागल हो गया, तो कौन सा पर्सन होता है वो इमोशनली बैलेंस है कि अनबैलेंस है? सैराम, दैट पर्सन इज इमोशनली अनबैलेंस है ना। अच्छा, इमोशनली बैलेंस का बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। जब राम का वनवास हुआ, राम को बताया कि यू हैव टू गो टू एक्साइल फॉर 14 इयर्स। एक दिन पहले का क्या इंसिडेंस था? रात की प्लानिंग क्या थी? रात की प्लानिंग क्या थी कि राम को 14 साल, सॉरी राम को राजा बना देंगे, है ना। राम इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज, क्या बोलते हैं उसको, प्रिंस और किंग, है ना, युवराज बनना उनको। और अगले दिन सुबह मालूम क्या चला कि ही हैज टू गो टू फॉरेस्ट फॉर 14 इयर्स, 14 साल के लिए वनवास जाना। तो दोनों इंसिडेंट्स में जब राम को बताया कि आपको राजा बनेंगे तब भी खुशी नहीं हुई, कोई बहुत दुख नहीं है, कोई खुशी नहीं है, संभव है। और जब मालूम चला कि 14 साल के लिए वनवास है तो भी कोई दुख नहीं है, कोई खुशी नहीं है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इमोशनल बैलेंस, है ना। तो जो हर चीज को एक समान भाव से ले सकता है, यानी अपना बैलेंस बना के रख सकता है, एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टीज एज वेल एट द टाइम ऑफ हैप्पीनेस, दोनों में अपना बैलेंस बना के रख सकता है, वो पर्सन ज्यादा अच्छा होता है। दैट्स व्हाई वी नीड इमोशनल बैलेंस। अभी देखो कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोग तो इसलिए पागल हो गए कि वो डर के मारे, फियरफुल है, जो भी है, बैलेंस नहीं रख पा रहे, इतना फियर क्रिएट कर लिया कि दे आर इन ट्रबल। तो दैट इज गुड पर्सन इज दैट हु हैज इमोशनल बैलेंस, है ना। और आजकल एक और जरूरत है हमको, वो होता है सोशल कोसेंट। एसक्यू मतलब होता है सोशल कोसेंट, whether this person will be able to work with the people, तो सब लोग के साथ मिलकर काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कैन ही टेक ऑल टुगेदर, सबके साथ चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो सोशल स्किल है कि उसके अंदर नहीं है, दैट इज जज बाय सोशल कोसेंट। कई लोग क्या होता है कि वो जैसे ही कुछ सक्सेस मिलती है तो सबको भूल जाते हैं, है ना, ईगोइस्टिक हो जाते हैं या लोगों से दूर हो जाते हैं, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो सबको साथ लेके चल सकता है, काम कोई कर सकता है अच्छे से, दैट इज गुड पर्सन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड सोशल कोसेंट। तो आजकल ये दो टेस्ट और बढ़ा दिए लोगों ने, एक EQ, इमोशनल कोसेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी बड़ी पोस्ट पे हैं तो कोई डिसीजन अगर इमोशन में बह के ले लिया तो कई बार गड़बड़ हो सकती है। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर है कंट्री का, चाइना से इतना वो चल रहा है कन्फ्रंटेशन, और केवल इमोशनली अनबैलेंस हुआ तो क्या बोला, अटैक कर दो चाइना के ऊपर, एक सेकंड में डिसीजन ले लिया, मालूम चला कि बाद में बहुत बड़े, है ना, या बहुत नुकसान हुआ हमारा भी उनका भी। सो दैट नीड्स अ लॉट ऑफ इमोशनल बैलेंस, ठीक है। तो भावनाओं बह के कोई डिसीजन नहीं लेना, फैक्ट और इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करके पूरा रियलिस्टिक डिसीजन ले सकता है वही बंदा जो इमोशनली बैलेंस होगा वो। एंड सोशल कोसेंट, हाँ जी सर इमोशनल, सर EQ तो सर पर्सनालिटी टेस्ट में आ गया ना। हाँ, पर्सनालिटी टेस्ट में जाएगा, लेकिन अलग से करने लगे पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब EQ भी आ गया, अलग से कर रहे हैं। इमोशनल में बताया ना, अलग से लोग करने लगे हैं ना, पर्सनालिटी में तो आ ही जाएगा, पर्सनालिटी टेस्ट में इमोशन टेस्ट करते हैं, बट ये और ज्यादा इस पे स्ट्रेस कर रहे हैं ना, इसलिए अलग से उसको बना दिया EQ। पर्सनालिटी तो सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन है ना, डिफरेंट एंगल्स जो होते हैं पर्सनालिटी को है, लेकिन EQ उसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स ओनली फॉर रेफरेंस आई एम डिस्कसिंग। ये नया ट्रेंड है अभी जो अभी डेवलप कर रहे हैं, ये टेस्ट भी लोग करने लगे आजकल।
सो ये धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे, सिलेबस में भी आएंगे उतना बार, दैट विल बी एडेड। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। पहला एलिमिनेशन कहाँ पे होगा? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में। कौन से लोग एलिमिनेट हो गए? जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, फिजिकल स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करे, दे आर एलिमिनेटेड। अब इस इंटेलिजेंस टेस्ट में या आईक्यू टेस्ट में या ईक्यू टेस्ट में बहुत सारे लोग फिर बाहर हो जाएंगे हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप बचेगा इंटरव्यू। इसके बाद का जो अगला स्टेप है वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू क्या होता है? फेस टू फेस इंटरेक्शन between candidate and interviewer। ना, कैंडिडेट एंड इंटरव्यूअर और इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई, कैंडिडेट एंड इंटरव्यूअर। सो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ रिटन टेस्ट। उसको हम जानते नहीं है कैसा पर्सनालिटी, कैसा दिखता है, कैसा क्या है, एंड सम डायमेंशंस, सम एरियाज कैन नॉट बी चेक्ड बाय ऑल दीज टेस्ट, सो दैट कैन बी कवर्ड बाय इंटरव्यू ना। इसको होते हैं क्या, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू तो नेता लोग का भी लेते हैं लोग, लेकिन इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है ना। सो इन दिस इट्स ए फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन कैंडिडेट एंड इंटरव्यूअर। इट्स ए डायलॉग। बेसिकली लोग उसको मोनोलॉग समझते हैं, बट इंटरव्यू इज नॉट ए मोनोलॉग, इट्स ए डायलॉग। डायलॉग मींस इट्स ए टू वे कम्युनिकेशन। इट मींस इन इंटरव्यू the interview panel or interviewer can ask the questions to the candidate, as well as candidate also can ask the questions to the panel. If candidate has some doubts, he want to clear some terms and conditions or some clarities he wants, he also can ask the questions to the interviewer, है ना। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करने जा रहा है उसके बारे में कुछ डाउट्स हैं, उसको कुछ पूछना है, so then he can also ask the questions to the interviewer. So it's a dialogue, not a monologue. So it's a face-to-face communication or interaction between candidate and interviewer to judge the suitability of the candidate for the job. To judge the suitability of candidate for job. जिस जॉब के लिए हमने अप्लाई किया है उसके लिए भी सुटेबल है कि नहीं है, दैट कैन बी जज्ड बाय इंटरव्यू। ठीक है। सो इंटरव्यूअर जो होता है वो कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन जो रिटन टेस्ट में चेक नहीं की, और भी डायमेंशंस हो सकते हैं, दे आर बीइंग चेक्ड, एंड इंटरव्यू कैंडिडेट आल्सो कैन आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट द डाउट्स। इज इट क्लियर? So interview is a face-to-face interaction between candidate and interviewer or interview board. So it's a dialogue, not a monologue, where both the sides are free to ask the questions. The interview board can ask the questions about the abilities or different types of angles of the personality of the candidate, and candidate also can ask the questions about the organization, its facilities or job conditions, whatever we want to know, you can ask to the interview panel. After this, here some candidates are eliminated. After interview also, some candidates are eliminated. So now elimination is over. Now what we do, sometimes in some organizations, they mix the score, draw a combined merit list on the basis of written test and this interview, and they find that who is the best candidate. हमारे इंडिया में जो सिलेक्शन का तरीका वो मार्क्स के बेस पे, ग्रेड्स के बेस पे, तो हमारे के मार्क्स देते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट के उसके मार्क्स इतने थे, एप्टीट्यूड के मार्क्स इतने थे, पर्सनालिटी के मार्क्स इतने थे, इंटरव्यू के मार्क्स इतने हैं, टोटल एग्रीगेट 1000 का 1000 मार्क्स का है। अब जिस कैंडिडेट के सबसे ज्यादा मार्क्स आए वो सबसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग सिलेक्शन डिसीजन होता है हमारा। तो उसके बाद होता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग, है ना, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग। ये क्या होता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग?
इसमें होता है कि जब हम एप्लीकेशन मांगते हैं तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वी आस्क द कैंडिडेट टू गिव द नेम्स ऑफ 2 पर्सन्स, है ना, नेम्स एंड एड्रेस और मोबाइल नंबर, है ना। कोई ऐसे 2 लोगों के नाम, है ना, फोन नंबर या एड्रेस मांग सकते हैं जिनसे हम उस कैंडिडेट के बारे में पूछ सकते हैं। सो वी कैन आस्क दीज पीपल व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज दिस, ना। रेफरेंस का मतलब होता है, रेफरेंस में जिन लोगों के नाम दिए हैं उसने, जिनका रेफरेंस दिया है, उन लोगों से हम फोन करके पता लगा सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ कैंडिडेट इज दिस, व्हाट इज हिज बैकग्राउंड। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट में पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं, सुना होगा आपने, जब गवर्नमेंट की नौकरी लगती तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है बैकग्राउंड चेकिंग के लिए। उसका पर्पज है कि जो पर्सन सेलेक्ट हो रहा है ही इज नॉट ए क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है उसका, उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन या रेफरेंस चेकिंग होती है। सो वी कैन इंश्योर दैट कैंडिडेट इज नॉट ए क्रिमिनल पर्सन, है ना, किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं है, इट इज ए गुड पर्सन दैट वी कैन चेक बाय these people whose name are given as reference, and we can get information from police station also by the police verification. So that is done before taking the selection decision. हमको हमारे पास इसके ऊपर तो आ गया, मालूम चल गया कि ये लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, उससे पहले हम ये श्योर करना चाहते हैं कि इसको हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं, दैट पर्सन इज ए गुड पर्सन, सो दैट वी डू दिस सेलेक्ट रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग, है ना। तो प्रीवियस एम्प्लॉय हो सकता है, कोई जहाँ पहले काम किया था वो हो सकता है, नोन पर्सन्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, इनके हम रेफरेंस मांगते हैं और इनसे हम वी कैन आस्क दीज पीपल अबाउट दिस कैंडिडेट। साईराम, आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. अब जब हमको मालूम चला कि अच्छा बंदा है, इंटेलिजेंस वगैरह तो अच्छा है, इसका स्कोर तो अच्छा है, Yes, sir. तो हम लेते हैं सिलेक्शन डिसीजन, है ना। सिलेक्शन डिसीजन होता है, सिलेक्शन डिसीजन, this person is being selected on the basis of this all process, written test, interview, reference is also told that person is a good person. We take a final decision that these people or this person will be selected out of the persons who have applied for the job, है ना। So we make a list of the selected candidates, ठीक। अब सिलेक्शन डिसीजन के बाद क्या करते हैं हम लोग? मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसको बता देते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया यहाँ पर। तो कई बार तो हम उसको बोलते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट भेजिए हमारे पास, किसी डॉक्टर से, सीएमओ से वो रिपोर्ट मंगाते हैं कि आप मेडिकली फिट हैं, है ना। तो कई बार तो हम कैंडिडेट को बोलते हैं कि यू हैव टू सेंड योर मेडिकल सर्टिफिकेट, है ना। तो वी वांट टू मेक श्योर दैट कैंडिडेट हु इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड इज नॉट इल, कोई सीवियर डिसीज तो नहीं है उसको, अदरवाइज दैट विल क्रिएट ए लायबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उसका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद बीमार मिल गया तो उसकी बीमारी की खर्चा ऑर्गेनाइजेशन को उठाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि अननेसेसरी खर्चा बढ़े। तो हम लोग पहले उसको बोलते हैं कि यू गिव योर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो कई बार तो कंपनियां, गवर्नमेंट में होता है कि आप जाके गवर्नमेंट में जो सीएमओ लेवल का डॉक्टर है उससे एक सर्टिफिकेट बना के लाओ और उसको भेजो हमारे पास, एंड दैट इज द प्रूफ दैट यू डोंट हैव एनी डिजीज। और कई कंपनियां जो होती है वो अपना मेडिकल बोर्ड होता है, so they ask the candidate to go to the medical board and get himself or herself examined। तो मेडिकल बोर्ड उनका टेस्ट करता है, सारे टेस्ट करेगा, पता लगाएगा कोई बीमारी तो नहीं है, then they give the certificate, ठीक है। so that is the medical test। और जब मेडिकल टेस्ट में उसका फिट हो गया, सब कुछ ठीक है, तो फिर हम उसको करते हैं जॉब ऑफर। जॉब ऑफर करते हैं उसको ना। जॉब ऑफर में क्या होता है कि we inform the candidate, we offer the job basically, है ना। उसमें लिखते हैं कि मिस्टर सिद्धार्थ जैन, यू आर सिलेक्टेड फॉर द सीईओ ऑफ द XYZ लिमिटेड एंड यू आर डायरेक्टेड टू जॉइन योर ड्यूटीज एट दिस प्लेस बाय दिस डेट, है ना। तो आपको सिलेक्ट किया गया है और आपको ऑर्डर देते हैं कि आप अपनी ड्यूटीज ज्वाइन कर लें। उसमें डेट लिखी रहती है कि किस ऑफिस में जाके किस डेट तक उसको अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है। सही राम, आर यू अंडरस्टैंडिंग? साईराम, यस सर। Yes, sir. तो सारे लोग इस दिन के लिए वेट करते हैं, जो लोग जॉब में बड़ा इंटरेस्टेड है वो इस दिन के लिए बड़ा वेट करते हैं कि कब जॉब ऑफर आएगी, है ना। सो दिस इज जिसको सिलेक्शन हो गया मेरा, तो इसी से मालूम चलता है लोगों को। तो वैसे बेसिकली 2 लेटर आते हैं, पहला सिलेक्शन लेटर आता है, बाद में जॉब ऑफर आता है। सिलेक्शन लेटर तो यहाँ पर आ जाता है ना, इस रेफरेंस एंड बैकग्राउंड के बाद आ जाता है सिलेक्शन लेटर, फिर मेडिकल टेस्ट होता है और फिर आता है जॉब ऑफर। इसमें जॉब ऑफर में लिखा होता है कि
you are directed to join you are selected and you are directed to join your duties at Jumri Talaiya by on or before, है ना, 10th अक्टूबर। जैसे आज किसी को ऑर्डर मिला कि आपका जो पोस्टिंग है जुमरी तलैया में हुई है, इस ऑफिस में आपको जाके अपनी ड्यूटी 10 अक्टूबर से पहले ज्वाइन करनी है, उससे पहले कर सकते हैं, 10 अक्टूबर तक लास्ट डेट उसको ज्वाइन करना है। तो अगर आप 10 अक्टूबर तक वहां पहुंच के अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते तो आपने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, और अगर आप उस डेट तक अगर आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते उसका मतलब कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफर। ठीक है, तो ये जॉब ऑफर है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने ड्यूटी ज्वाइन कर ली जहाँ पे आपको बोला वहां, तो उसका मतलब यू हैव एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर एंड योर जॉब बिगिंस। एंड अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आप उनको कम्युनिकेशन करो किसी रीजन से नहीं जा पा रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई एम नॉट एबल टू रीच टू दैट प्लेस, अदरवाइज दे विल अज्यूम दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड दिस जॉब विल बी ऑफर टू द नेक्स्ट पर्सन, जो आपके बाद जिसका मेरिट में नाम होगा उसको जॉब ऑफर कर देंगे वो लोग, है ना। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ जॉब ऑफरिंग, जॉब ऑफर टू द कैंडिडेट। और बाद होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की सर्विस कंडीशंस होती है इसमें। व्हेन कैंडिडेट हैज जॉइन द जॉब, जब उसने अपना ड्यूटी ज्वाइन कर ली तब एक कॉन्ट्रैक्ट उससे साइन कराते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जॉब की। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसकी सैलरी क्या होगी, स्केल क्या होगा, प्रमोशन कैसे होगा, डिमोशन कैसे होगा, नौकरी से कैसे हटा सकते हैं, वो कैसे नौकरी छोड़ के जा सकता है, डिसिप्लिनरी रूल्स क्या होंगे, अगर उसने कोई रूल ब्रेक किया तो क्या पनिशमेंट होगी। ऑल दीज टर्म्स एंड कंडीशंस आर मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर डिस्प्यूट होगा कैसे सॉल्व होगा, आर्बिट्रेशन में जाएगा कि कोर्ट में जाएगा, ऑल दीज कंडीशंस आर मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इट्स अ लॉन्ग एग्रीमेंट एंड इट इज साइंड बाय बोथ द पार्टीज। जो ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी होता है या हेड होता है वो साइन करेगा इसको, या और जो कैंडिडेट होता है वो साइन करेगा। इसकी एक कॉपी कैंडिडेट के पास रहती है और एक कॉपी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल फाइल लगा के रखते हैं उस कैंडिडेट की, है ना। सो 2 copies are prepared of the contract of employment and both parties sign. So the employee has to work according to conditions of the contract of employment। इसके कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस के हिसाब से उसको काम करना होता है ना। तो अब उसकी नौकरी की शुरुआत हो जाती है। So this all selection process is being followed. If all these steps are being passed, job is offered and after joining the duty, the contract agreement is signed। नॉर्मली जो जॉब होता है वो 2 साल के प्रोविजन पीरियड होता है, 1 साल या 2 साल डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोविजन पीरियड का मतलब होता है कि 2 साल तक उसके पास वो जॉब रेगुलर नहीं है उसकी, अगर वो अनसेटिस्फाइड होगा तो उसकी जॉब खत्म कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन। 2 साल के बाद उसको कंफर्मेशन ऑर्डर मिल जाता है, देन हिज जॉब इज परमानेंट। ठीक है, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। एनी डाउट एनीवन? सर हाँ जी सर एक चीज पूछना था सर कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है सर, वो तो सर सिलेक्शन डिसीजन के पहले आना चाहिए ना? नहीं, बाद में आता है, मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली। हाँ, सिलेक्शन में बैकग्राउंड देख लिया उसमें, हाँ बता रहा हूँ, सिलेक्शन डिसीजन के पहले आना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर उसका मेडिकल अच्छा नहीं आता तो हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, वाला बता सकते हैं कि यू आर नॉट मेडिकली फिट। जैसे क्या होता है मैं बताता हूँ, मेरे पास 2-3 बार आ चुका है इसलिए पता है मुझे। जैसे मेरे पास आया कि यू आर सिलेक्टेड एट एनसीईआरटी एंड यू हैव टू जॉइन टू मैसूर, है ना, एनसीईआरटी रीजनल कॉलेज मैसूर। तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बना के भेजना है, ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपना बना के भेजना है। एंड दिस शुड बी प्रिपेयर्ड बाय अ ऑफिसर सीएमओ लेवल, जो होता है ना सीएम क्या होता है उसमें, चीफ मेडिकल ऑफिसर लेवल का कोई मेडिकल उसके लेवल का कोई डॉक्टर को बनाएगा। ठीक है, तो बाद में मांगते हैं, तो होता कैसे बनता कैसे, या मेडिकल बोर्ड है वहां तो सही है कि वो ईमानदारी से चेक करेंगे, आपको सारे टेस्ट होंगे। यहाँ पर कैसे बना मैं बताया था प्रैक्टिकली। गुनामा जो हॉस्पिटल ना, देखा है क्या गुनामा हॉस्पिटल आप लोगों ने? सही राम सर कौन सा? गुना का हॉस्पिटल देखा ना, लक्ष्मीगंज में सामने, वो उसके पीछे डॉक्टर्स के क्वार्टर है, उसी में वहां वो बैठते थे जो मेडिकल होते उनके, जिनसे वो बनवाना था सर्टिफिकेट। मैं उनके पास गया कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनना है, तो उनका जो पियून बैठा था गेट पे, उसने एक फॉर्म दे दिया, मुझे फॉर्म भर दो इस पे। मैंने बोला क्या करूँ इसमें? बोला सब पे लगा दो, बोला हार्ट डिसीज, बोला नो पे टिक लगा दो, बोला ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे लिख दो, बोला शुगर पेशेंट, बोला नो लिख दो, सब अपने हाथ से लिख दो। मैंने कहा आप डॉक्टर साहब क्या करेंगे? बोला कुछ नहीं करेंगे, आप मुझे 100 रुपये दे दो। ठीक है, मैं 100 रुपये दिए उसको। 5 मिनट बाद वो सील लगा के आ गया। डॉक्टर साहब ने पूछा कोई बीमारी तो नहीं? 1 मिनट के लिए बुलाया, बोला कोई बीमारी तो नहीं है। मैंने कहा नहीं है।
उन्होंने सबने साइन कर दिए, उसने सील लगा के वो मुझे दे दिया, मैंने वो भेज दिया वहां पे। सही राम, ठीक है। तो दिस इज द वन वे। दूसरा होता है मेडिकल बोर्ड, जिन कंपनियों के होते हैं वहां वो मेडिकली पूरा एग्जामिनेशन करते हैं, सारे टेस्ट होते हैं, और उसमें रिपोर्ट जब पॉजिटिव आती तो ही उसको अभी पॉजिटिव नहीं, कोरोना पॉजिटिव आ गई तो गड़बड़ है, बाकी सब समय जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती है तो उसको ज्वाइन कराते, नहीं तो ज्वाइन नहीं करते उसको, है ना। दैट इज द वे। हालांकि वो सही है कि वो सिलेक्शन डिसीजन लेने से पहले ही करना चाहिए उसका टेस्ट, लेकिन फिर सिलेक्शन डिसीजन लिए तो टेस्ट किसका करेंगे? सिलेक्शन डिसीजन तो रहना जरूरी है, फिर सारे लोग का टेस्ट कराएंगे। अनुराग, सिलेक्शन डिसीजन से पहले तो सारे लोग का टेस्ट कराना पड़ेगा, है ना। सही बात है सर। तो इसलिए वो क्या सिलेक्शन डिसीजन ले लेते हैं, उसका बताते हैं कि अगर कोई सीवियर केस होता है, 99% कोई केस होता नहीं, अभी तक सुना नहीं कोई मेडिकल के ग्राउंड पर रुका होगा। हाँ, मिलिट्री वगैरह में रुक जाते हैं लोग, वहां देखा कि वहां लोग रुक जाते हैं, बाकी नॉर्मल पोस्ट में तो लोग हो जाते हैं लगभग, है ना, 99% केस में हो जाता है लोग, इसलिए बाद में होता है। ठीक, तो साईराम, टाइम इज ओवर, कैन लीव नाउ।